can say here, and that is material and manufacturing process, publisher, retailer, and pharmacy. To only accept less than 5% plagiarism, as well as some cases also for the percentage error in terms of prediction. तो ये हमको देखना पड़ेगा कि अगर हम बेसिस के लिए या पेपर सबमिट करते हैं तो वहाँ पे प्लेजियम एरर भी कि हमारा 5 से ज़्यादा ना हो कुछ जनरल से लिए, और जो हम प्रिडिक्शन एरर निकाल रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वर्सेस प्रिडिक्शन, तो ये 5 से ज़्यादा है। सम जनरल है जैसे कि एल सी एफ जनरल है या कुछ सारी एल सी एफ और एक रिजल्ट है तो ये नियर अबाउट 15% सफिशियंट और वो डिजिटेशन बट हमारा मोटो रहेगा कि जब आप एप्लीकेशन करें तो एरर टू बी हमेशा अच्छा रहे, और जब पेपर सबमिट करें तो प्लेजिज्म वहाँ पे भी इसको भी एक तरह से एरर कंसिडर करें और दैट कैन बी आल्सो ट्राई टू मिनिमाइज, इसको हम कंसिडर करते हैं। कैटेगरी ऑफ पेपर की जब बात करते हैं तो मोस्टली पेपर की कैटेगरी डिपेंड अपॉन दी कैटेगरी ऑफ पब्लिशर, किस टाइप का पब्लिशर है, सॉरी किस टाइप का जर्नल है, कहाँ पे हम पेपर को पब्लिश करते हैं। द कैटेगरी ऑफ जर्नल रिफ्लेक्ट दी कैटेगरी ऑफ पेपर। इफ जनरल इज SCI, इट मीन्स कि आवर पेपर पब्लिश इन SCI कैटेगरी, और वही पेपर जनरल का कैटेगरी होगा, जनरल की कैटेगरी पेपर की कैटेगरी होगी। सेम में इफ पब्लिश इन स्कोपस जनरल, it means कि our paper or scholar article come in category of scopus. So now come to indexing. General क्या है? तो जनरल मीन्स की पीरियाडिक पब्लिकेशन ऑफ स्कॉलर आर्टिकल related to the particular basically after peer review. So that is a simple definition of general, and simple way we can say that the general serve as permanent and transparent forum, like a forum for presentation, scrutiny, and discussion of research articles, and they are usually peer review or referred. So most of the simple definition that is a periodic publication. But indexing come to indexing of general. So here we summarize some of the indexing. You can see here SCI general, SCI general, ESCI general, Scopus general, referred peer review general, ISN number general, UGC AICT general. So most of the SCI or ESCI general and ESCI general. ESCI general extended science citation unit. So the category of first two general also uh, available at Web of the Science. Scopus Journal, that is managed by Elsevier. So Elsevier के site पे that is data is available. Referred and peer reviewed journal, these are the normal journals, only that can be available at the side of publisher. ISN general, UGC general, these are coming category of simple journal and non well reputed journal. तो इसको हम कहीं से भी असेस कर सकते हैं, मोस्टली दे आर पेड कम कैटेगरी ऑफ पेड। तो यहाँ पे हम जो फोकस करेंगे अपने पब्लिकेशन का, तो SCI और इसको पर जनरल दीजा मोर रेप्यूटेड जनरल। और जब भी आप पीपल डिस्कस करते हैं और इंडस्ट्रीज आर इंस्टीट्यूट try to know about the indexing or label of journal. So simply ask how many number article published in CI journal or Scopus journal. So for point of that direction, try to publish research paper mostly either SCI journal, either Scopus journal. Otherwise, UGC approved or AICT journal, approved journal, RNA journal, state journal. So these are coming category of non-registered journal. And more of the institute not consider some type of donation as a grade point of view. तो वहाँ पे फोकस नहीं करेंगे। नाउ कम टू SCI जनरल क्या है? तो सिंपल सा है कि SCI साइंस साइटेशन इंडेक्स इज ए citation index and originally produced by Institute for Scientific Information (ISI) and created by William Garfield. And most of the data to be covered here. Compile here like the biometrics, general citation report, SCI, impact factor, ISI, or almost all the data to be compiled. Mostly previously that is
governed by intellectual property and science business of Thomas Investor, but now it is governed by Clarivate in analytics. So that is a good indexing for the general. Now come to Science Citation Index Expanded, SCIE. So that is a extended version of SCI because of the almost most of the journal not covered by the SCI. So that is extended, and now till now 8,500 journals to be covered in SCIE category of SCIE. So either SCIE, either extended, both are same and both are available at the वेब ऑफ साइंस। और यहाँ पे एक चीज हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि ओनली एस सी आई और एस सी आई दो ही जनरल का जो है इम्पैक्ट फैक्टर कंसिडर होता है। ओबियसली बहुत से गूगल स्कॉलर भी 8 पॉइंट 2.5 5 6 इस तरह से जो है ओपन जनरल या ट्रेड जनरल का दिखाता है इम्पैक्ट फैक्टर। तो ये जनरल का इम्पैक्ट फैक्टर कंसिडर नहीं होता है। जो वेब ऑफ साइंस है के थ्रू जो है या सी आई जनरल का आता है, यही जो है आपको कंसिडरेशन पे मिलता है। कोई भी जनरल कंप्लीटली 2 इयर्स एस सी आई के बाद वेब ऑफ साइंस पे के कैटेगरी में क्रेडिट होता है, उसके क्रेडिट एस सी आई क्रेडिट होता है। तो आफ्टर 2 इयर्स इम्पैक्ट फैक्टर टू बी अनाउंस फॉर द पर्टिकुलर दैट जनरल। तो अगर कोई नया जनरल हो और उसका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है तो फिर भी उसमें तो सोचने की बात नहीं, पेपर आप वहाँ पर अपना सबमिट करें, सबमिट करें बिकॉज ऑफ आफ्टर कंप्लीशन कंपाइलिंग कंप्लीटिंग द 2 इयर्स उसका जो इम्पैक्ट करा है। बट अदर जनरल आइदर स्कोपर जनरल आइदर ई एस सी आई जनरल ई सी नॉट हैविंग इम्पैक्ट फैक्टर और यू जी सी और ए आई सी टी या ऑनलाइन जनरल, तो ये तो इसमें आप तो इसलिए इस पर आप फोकस नहीं करें तो दैट इज now Scopus, so that is also indexing and database system and managed by the SDF 2004 से start हुआ है और more than जो है 5,000 publisher इसके साथ जुड़े हुए और almost all the journals as a peer review scientific journal, technical journal, medical journal, social science के journal, all type का journal to be published by this। ठीक है, तो जितने भी हमारे स्कोपस है या ESCI जनरल है, तो ये सब जनरल जो है ऑल टाइप के जो पेपर्स को पब्लिश करते हैं। ये नथिंग रिक्वायर्ड ओनली फॉर मैथमेटिक्स साइंस आर इंजीनियरिंग, एनी टाइप के आप पेपर टू पब्लिश है मेडिकल से सोसाइटी से इन्वायरमेंट से, तो ऑल टाइप ऑफ जनरल टू पब्लिश है। Peer review journal, that is a simple journal and research article to be reviewed by experts and after the peer review that can be published by the journal. So that is a peer review and that is also a good for most of the activity ऐसे ही करें। Okay. So now that is peer review journal. Now SCI general ranking SGR now indicate the impact factor और most of the जो है developed heteronym citation है। SGR mostly जो indicator है और indexing के form में that is used to indicate the citation factor impact factor। So SGR impact factor indicate that the citation impact factor in term of heterogeneous nature means कि such article are cited by same journal paper and cited by other journal paper, other publisher. So based on the such criteria, impact factor to be announced by SDR. So that is the indicator and similar to impact factor. So periodically 2 years के बाद ये SDR provide करता है। तो ये स्कोपर journal that is also show there SDR impact factor. And other journal, SCI journal also showed here SCR impact factor, so that is applicable for both. Now, how to find the indexing? So that is most of the scholars query that how to identify the SCI journal and स्कोपर journal. तो सिंपल सा एक तरीका है कि आप जर्नल की वेबसाइट पे जाइए और जब if you go for the website of the journal, so we can see a lot of items like submit your paper, guide for author, and you can see a abstracting and indexing. So first click on abstracting and indexing, and we can find the citation of
indexing of gender. And for this here we can see the camper for indexing. And first we can see that science citation index extended, scopus, insert, and so many. And Web of Science also show here. Google Scholar and other lot of things to be covered here, but only limited part to be shown here. Or because that we only focus scopus and SCI, PhD of the ecosystem. And now, if you know the name of the journal paper, so simply go to the SCI site, MI, emjl.clarivate.com, so you can find the journal, and here we can find the category of journal. Either SCI, that can be shown here. If not SCI, so वहाँ पे that is not available. Same way Scopus journal, go to check at the side of the Scopus, means scopus.com, and search the journal, which search the journal paper is SCI, that is available. Now come to publisher here. So there are so many lot of publisher here. So we have to some of them we try to compile here like ASME, American Society for Mechanical Engineering, Elsevier, Springdale, Taylor and Francis, Sage, ASTM International, Inter Science, IIT Science, World Scientific, IEEE, Pungal, IGI Global, Nova, so many publishers are uh, publish the journal papers, scholar article, and almost all the journal covered various dimensions of the publications, not only for the field of mathematics or science, and so many, almost all the field of आर्टिकल्स लाइक सोसाइटी इन्वायरमेंट तो सब कुछ यहाँ पे पब्लिश होते हैं तो बेस्ड ऑन आवर डाटा वी कैन फाइंड आउट द appropriate genre and now go to submit our articles. So how to submit? Write submit the paper that will be discussed later. But here we can go to discuss how to write a paper. तो कैसे पेपर लिखेंगे कौन कौन सी स्टेप हैं इसके लिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन नो दैट कि सिंपल स्टेप्स वी कैन फाइंड द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर द पर्टिकुलर generals or for any generals we can go to check the side of generals and we can find the standard guidelines for a particular general. But in common, there are some standard guidelines, common guidelines, which is required for all the general. And these common steps and common first thing that is a title, second author name and affiliation, third abstract, next keyword, introduction, figure, table, equation, experimentation, result and discussion, conclusion and reference. So these are points and based on these points almost all the general call the paper. Here we write here experimentation, but if theoretical paper, we'll go for theoretical approach. So experimentation or the theoretical approach, both are similar result and discussion. That is the common for the conclusion and other things common for the now come to title. How to write the title? So title that is a precise statement reflecting the theme of article. और जो टाइटल होती है कंपाइल द होल द थीम ऑफ द प्रोजेक्ट आर्टिकल फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड मीन्स कि abstract to conclusion. So how to write? So some of the example, for example purpose you write here, for example electro spark microfabrication reflect the something कि microfabrication spark energy to be utilized to fabricate the micro items. Same electrochemical spark based hybrid machining processes, recent trends and opportunities. That is also a title. Next, development and experimental investigation and replace learning process. That title to be discussed later, and case study to be only focus on this title. Next, experimental investigation of slotted electrical discharge abrasive grinding of aluminum silicon carbide graphite composite. So means ki whole the title to be only try to write in a very precise way and try to
whole the thing to be covered here. And next, author name and affiliation. So author 1, author 2, author 3, some we can see most of the general papers. So 1, 2, 3 author name. So one not indicate the author first. One indicate the affiliation of author. And if author one written and more than one author, it means the affiliation of all author is same. So for here we can see that one and one means Department of Mechanical Engineering, DVD, National Institute of Technology and Management. But author two, that is also Department of Mechanical Engineering, was instituted, that is Babu Banarsi Das University, Lucknow. So same way, if there is some more author belong to the DVD University, so you can write here two, and if other uh, some more author belong to the other university, other institute, so like 1, 2, 3, 4, 5. So that is a writing is writing the affiliation of 1, 2, 3, 4, 5. Same way में star also indicate here. So star means indicate here the corresponding author, and that is a more powerful author for whole the correspondence during the submission to acceptance. तो जब तक आपका पेपर पब्लिश नहीं हो जाता, all the communication to be made with by the corresponding author. Nobody can be responsible for the correspondence. ठीक है, तो जो भी जनरल से आपको करस्पॉन्डेंस करना है, करस्पॉन्डिंग अथर ही करता है. तो बोथ अथर, दो देयर आर टू अथर, फर्स्ट अथर जिसको पहला होता है एंड करस्पॉन्डिंग अथर, दीज आर टू मोर बेनिफिशियल फॉर ए पर्टिकुलर पब्लिकेशन. तो जब भी आप पब्लिकेशन के लिए कोशिश करते हैं तो ट्राई करें कि आप फर्स्ट अथर रहें, अदरवाइज आप अपना मेजर रोल प्ले करें और करस्पॉन्डिंग अथर रहे. तो बिकॉज आपकी करस्पॉन्डिंग अथर के लिए जो वेटेज है, वेट पॉइंट है, हमेशा जो है इक्विवेलेंट तो दोनों का कंसिडर किया जाता है. तो आप यहाँ पे अपने को जो लोग हैं वो रखने की कोशिश करें. ठीक है, कहीं कहीं पे जो मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं कि जो पेड जनरल है वहाँ पे लिखा रहता है डॉक्टर, प्रोफेसर, डायरेक्टर, रिसर्च स्कॉलर या पीएचडी. तो सब टाइप की जो या कुछ इस तरह की चीज़ें जो सफिक्स यूज करते हैं पहले लिखते हैं, तो इस चीज़ को ट्राई टू एवॉइड, ये लिखने का प्रैक्टिस को छोड़ दें. लिखा जाती है चीज़ें बिब्लियोग्राफी नोट में लिख सकते हैं, बट एफिलिएशन अथर नहीं बन एफिलिएशन में सर्च ओनली राइट कीजिए, जो भी नाम है वो नाम लिखें और इस तरह के जो है रिवाइज करें. नेक्स्ट दैट इज abstract. After affiliation name and affiliation go for abstract. Abstract precise statement for the article and cover from introduction to conclusion. जैसे हम टाइटल में डिस्कस करते थे कि ये टाइटल टू बी ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन और सारे सिंगल सेंटेंस में कंपाइल हो जाए और होल द प्रोसेस को एक सिंगल सेंटेंस में प्रेजेंट करता है. So that is title. But same way title to be elaborated and write in form of the abstract, and abstract also a precise statement, whole the article covering from the introduction to conclusion. तो फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हम डिस्कस किया था कि जो डेवलपमेंट ऑफ डुप्लेक्स लर्निंग दैट इज टू बी कवर्ड फॉर द केस स्टडी पर्पज है, उसको हम डिस्कस करेंगे. तो सेम वे में उसी का अब्स्ट्रैक्ट वी कैन सी है कि हम कैसा लिखा गया है. The aim of present study was to develop a novel turning process with a simultaneous application of two cutting tool in place of single cutting tool for machining of rotating surfaces. Okay, so that is coming aim. Now, such develop process refer a duplex turning. Try to name the process here and able to eliminate the need of secondary final cut operation in turning process. So now here indicate the advantage of duplex turning over the normal turning process. And finally, you can see here the third sentence. From the result, it was concluded that duplex turning process was capable to providing better surface finish as compared to the those surface generated by single cutting process. So here the conclusion also to be covered here. So you can see here three sentences introduction of the existing process, compare with the existing process. Sorry, introduction of developing process. Second sentence, compare the existing system, and last sentence outcome, that is in terms of
new system with the existing system. So whole thing to be covered here means कि अगर जब भी you can go to write a abstract, that is a clear and vision of your work to be clearly explained in one paragraph. And there are some of the general limited 150 words or 200 words or 300 words, but not more वर्ड्स टू बी रिक्वायर्ड है। तो आप कोशिश करें कि आपका जो है जब भी अब्स्ट्रैक्ट हो 200 या 150 या मोर देन नियर अबाउट 250 वर्ड्स, दैट इज सफिशिएंट। तो जितना ही अब्स्ट्रैक्ट आपका प्रिसाइज एंड कंपाइल होगा दैट इज बेटर फॉर द पर्टिकुलर पेपर। नाउ कीवर्ड्स, तो मोस्टली कीवर्ड्स अब जनरल जो है सिंगल वर्ड में प्रेफर करते हैं सम ऑफ द जनरल। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पर राइटअप किए हैं टर्निंग, डुप्लेक्स, कटिंग, रफनेस, मार्लिंग, ऑप्टिमाइजर, सब टाइप ऑफ सिंगल वर्ड टू बी रिक्वायर्ड। बट ट्राई करें, अवॉइड करें राइटअप के लिए कि जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम अवॉइड करें कि डुप्लेक्स टर्निंग प्रोसेस। तो देयर आर 3 वर्ड्स डुप्लेक्स, टर्निंग, प्रोसेस। तो 3 वर्ड्स जब एक साथ कंपाइल करते हैं तो वी कैन रीड डुप्लेक्स टर्निंग प्रोसेस। तो ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ फ्रेजेज वर्ड आर स्टेटमेंट because of the most of the comment I have received one comment and based of the comment we can try to clarify it, not that is my opinion। तो based on the comment मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ। और if you want to write in the phrase तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। और now people most of the people write in the phrases like duplex turning process। बट अगर वो कीवर्ड की बात करता है तो वर्ड मीन्स वर्ड होता है, तो यहाँ पे इसको हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन टू बी आल्सो प्रिसाइज वर्क। और इंट्रोडक्शन कंपाइल 3 सेक्शन, मोस्टली 3 सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन होता है कि अबाउट एग्जिस्टिंग सिस्टम, देयर मेरिट एंड डिमेरिट एंड नीड फॉर डेवलपमेंट। तो ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि पहले पैराग्राफ में किसमें नीड क्या है, पहला सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है और उसमें बेनिफिट या उसके डिमेरिट्स क्या है जिसकी की जरूरत कोई उसमें रिक्वायरमेंट है। जैसे सेकेंड पैराग्राफ में जाते हैं तो जो उसके डिमेरिट्स बेस्ड ऑन द डिमेरिट्स वी कैन एक्सप्लेन दी डिमेरिट रिक्वायर्ड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो बेस्ड ऑन दिस उसके बाद हम अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को बताते हैं कि उसमें क्या चीज हो सकती है। और उसके बाद थर्ड पैराग्राफ वी कैन एक्सप्लेन दी एक्सटेंडेड और पॉसिबल बेनिफिट कि जो हम डेवलप कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं उसके बेनिफिट उसमें क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि टर्निंग इज मोस्ट कॉमन प्रोसेस फॉर सेटिंग अप कन्वेंशनल एज वेल एज एडवांस न्यू मटेरियल। तो दैट इज सफिशिएंट, इसको रीड आउट कर सकते हैं ना पार्टिकुलर। लास्ट में आप देखेंगे कि हमने लिखा है कि डुप्लेक्स टर्निंग इच mechanism of become advantageous over normal turning in various ways like reduction in time, better surface finish, reduction in specific energy। तो these are some advantage to be discussed here। तो ये चीजें हो आप पेपर में उसको राइट कर सकते हैं। जब पीपल पेपर सबमिट करते हैं और सबमिट करते हैं तो उनके दिमाग में होता है कि यार मेरा ही पेपर है दूसरे कैसे सबमिट कर। तो यू कैन सी है 4 फिगर और हर फिगर में देखेंगे। फिगर फर्स्ट देखें कि टर्निंग ऑपरेशन में देर आर 2 टूल बोथ साइड से पेनिट्रेट हो रहे हैं। राइट में देखें कि हम सामने से उसको फिगर बना रहे हैं और जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट के दोनों साइड से 2 टूल जो पेनिट्रेट हो रहे हैं सिस्टम। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 2 डायमेंशनल फिगर्स, फिगर थर्ड एंड फिगर फोर्थ 3 डायमेंशनल पेपर और स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे दिखाया गया। मीन्स ऑल फिगर डिफर टू ईच अदर। तो जब भी आप जितने भी पेपर पब्लिश करते हैं यू ट्राई टू क्रिएट ए न्यू कंसेप्ट और नया फिगर आप उसमें अपलोड करें। बिकॉज ऑफ इफ ये योर पेपर ऑलरेडी सबमिटेड एंड पब्लिश तो आप कॉपीराइट सबमिट कर देते हैं एंड ओनर इज नाउ पब्लिशर, तो वो उस फिगर का उस कंटेंट के ओनर हम नहीं होते। तो अगर इफ यू ट्राई टू सेम फिगर टू बी पब्लिश इन योर नेक्स्ट कमिंग पेपर तो वहाँ पे आपको कॉपीराइट सेक्शन पे जा करके यहाँ पे हमने लिखा भी है यू कैन चेक द कॉपीराइट सेक्शन होगा एंड रजिस्टर योरसेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड द रीप्रिंट परमिशन। तो वहाँ पे आपको रीप्रिंट परमिशन के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। बट
in case of reprint permission, the cost of the figure is much more high as compared to कास्ट ऑफ पेपर। तो अगर आप पेपर लेते हैं तो उसकी कास्ट अलग होती है, वो हो सकता है कि सस्ता होगा कंपेरेटली, बट फिगर अगर भी प्रिंट के लेते हैं तो कास्ट में भी हाई, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है भी प्रिंट फिगर की कास्ट ज़्यादा होती है। तो टू अवॉइड द कास्ट, अगर आप कास्ट नहीं देना चाहते तो अपने माइंड को यूज करिए, और हर बार या ऑलमोस्ट जो है आप रीप्रिंट से बचने के लिए एक न्यू कंसेप्ट के साथ जो है नया फिगर को अपलोड करें। और यहाँ पे देखेंगे देयर आर 4 फिगर एंड ऑलमोस्ट ऑल फिगर नोबडी कैन मैच टू ईच अदर, कोई किसी से मिल नहीं रहा, बट थीम इज सेम। तो इस चीज को आप जो है अप्लाई करें। नाउ एक्सपेरिमेंटेशन, अगर आपने फिगर बना लिया तो दैट इज कम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल देयर आर टू थिंग, आइदर एक्सपेरिमेंटेशन आइदर मैथमेटिकल अप्रोच। तो कुछ भी आप मैथमेटिकल मॉडलिंग किसी भी डाटा की तरफ जाते हैं तो गो फॉर डिस्कस द ईच एंड एवरी पैरामीटर, मीन कि आप क्यों करना चाहते हैं। फॉर गो फॉर मैथमेटिकल तो राइट दी एजम्पशन, अगर हम प्योर मैथमेटिक्स की तरफ जाते हैं तो हमने क्या क्या चीज फैक्टर्स को एजम्पशन में लिया है। अब गो फॉर एक्सपेरिमेंटेशन तो हम एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे। गो फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग या मैथमेटिकल अप्रोच अप्लाई करते हैं। आफ्टर एजम्पशन एब्रिसिएशन की स्टैंडर्ड पैरामीटर्स देयर रेंज, वो सब चीज यू कैन कंपाइल इन ए टेबुलेटेड फॉर्म। सेम वे में फॉर एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं, राइट अबाउट मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, आपने क्यों लिया, कितने परसेंटेज हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, ऑल थिंग टू बी कंपाइल इन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। सेम वे मेथड, कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, इस मशीन को परफॉर्म करेंगे, नेम ऑफ मशीन, मॉडल ऑफ मशीन, स्पेसिफिकेशन ऑफ मशीन। पैरामीटर, जो कंट्रोल पैरामीटर है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर टू बी affected the responses. One is control parameter and another is uncontrolled parameter. So mostly we focus on the control parameters, and these control parameters only belong to the machine parameters, which are very controlled by operator, I think, during the machining or cutting or the performance. तो जो मशीन पे पैरामीटर्स अवेलेबल होते हैं, तो these parameters are considered. The uncontrolled parameter like humidity, temperature, speed, density, material density, machine efficiency, these are come in category of uncontrolled parameter because of it is very difficult to control by operator, तो इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो all those parameters required for the performance control by operator you can clearly define कि क्यों चूज किए और इसका पर्पज क्या है। एक्सपेरिमेंटेशन आइदर go for mathematical technique, तो देयर आर टू टेक्निक, वन इज एक्सपेरिमेंट के जाते हैं तो वन पैरामीटर एट ए टाइम। तो मोस्टली जो न्यूली आर मॉडिफाई ऑब्जेक्ट हैं, प्रोसेस है, मशीनरी है और इक्विपमेंट है, तो फॉर सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर फर्स्ट थिंग दैट इज वन पैरामीटर टाइम। पैरामीटर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड गो फॉर देयर मैक्सिमम रेंज, प्लॉट ए ग्राफ, और जब जीरो से और मैक्सिमम रेंज के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, देयर इज ए एवरेज रिस्पांस, जिसके बीच में एवरेज एक स्पान मिलता है, ड्यूरिंग दिस स्पान रिस्पांसेज आर ऑलमोस्ट एवरेज। तो उस एवरेज के बीच में हम जो है पैरामीटर के रेंज को सिलेक्ट करते हैं एंड बेस्ड ऑन दिस गो फॉर फर्दर एनालिसिस। उसके बेस पे हम जो है डीओई बेस एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, मॉडलिंग करते हैं या समथिंग एनालाइज करते हैं, एंड दैट ड्यूरेशन कैन बी कंसिडर एज ए मॉडरेट रेंज। तो उस मॉडरेट रेंज में हम वर्क को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें कि व्हीकल जब देखते हैं तो उसकी मैक्सिमम स्पीड 120 होती है, 0 से 120, बट फॉर द नॉर्मल वर्क तो 30 से लेकर के 60 के बीच में हम जो व्हीकल अगर चलाते हैं, दैट इज ए सेफ रेंज। तो इस तरह से जब हम किसी भी मशीन पे किसी भी प्रोसेस पे वर्क करते हैं तो सिलेक्ट द एवरेज और मॉडरेट स्पान, एंड दैट इज स्पान किसी तरह का प्रोसेस है, किसी तरह की मशीन है, मेथड है, मटेरियल है, फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। नाउ एड न्यू पिक्चर एंड सिमेट्रिक डायग्राम, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डाटा टू बी टेबुलेटेड इन टेबुलेटेड फॉर्म एंड इक्वेशन टू बी राइट थ्रू द इक्वेशन एडिटर। अगर सिंपल हम कहीं से कॉपी करके पेस्ट करते हैं या उसको फोटोग्राफ पिक सबमिट करते हैं, दैट्स वी नॉट। तो गो फॉर राइट यूज द इक्वेशन एडिटर फॉर इक्वेशन। रिजल्ट एंड डिस्कशन, तो result and discussion also require
required to clarify the each and everything and everything the finding of our after experimentation. For example, anybody work for any machine and starting the check the performance from zero to their maximum limit. तो in between zero to maximum initially zero से जैसे स्पीड पर रेंज बढ़ती है रिस्पॉन्सेज में कुछ चेंजेज आएगा एंड अप टू ऑप्टिमम लिमिट के बाद रिस्पॉन्सेज टू बी डिक्लाइन तो इन ड्यूरिंग जीरो टू मैक्सिमम लिमिट व्हाट हैपन increasing decreasing so why what's the type of parameters graph to be performed so that can be clearly क्लेरिफाई ड्यूरिंग दी डिस्कशन पीरियड और जितना ही अच्छे से आप डिस्क्राइब करते हैं चांसेज ऑफ एक्सेप्टेंस विद साइंटिफिक एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस देयर आर टू टाइप एक तो आप एसीएम लगा दें या टेम लगा दें या माइक्रोग्राफ लगाएं दूसरा क्या कि such type of evidence from the previously published article अगर इस तरह का कहीं पे कुछ हुआ है तो उसका भी हम वहाँ पे एविडेंस के रूप में यूज करेंगे बिकॉज आपके कुछ इस तरह से अननेचुरल या अनहैपन फाइंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिएटेड awkward सिचुएशन तो उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए कि ऐसा ही हो रहा है टू बी एडेड द एसीएम माइक्रोग्राफ और टेल माइक्रोग्राफ फोटोग्राफ विद द फॉर ए साइंटिफिक एविडेंस तो इसके साथ हम डिस्कशन फोरम में इसको ऐड करेंगे कंक्लूजन सेम वे में conclusion to be very precise and that is most of the journal call in the paragraph form and most of the journal find the try to find the conclusion in point wise तो मोस्टली जो सर्वे पेपर होते हैं तो वहाँ पे हम मोस्टली जो पैराग्राफ या समरी कंक्लूजन टू बी कन्वर्टेड इनटू समरी और समरी के फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हैं बिकॉज आपके लाट ऑफ पेपर टू बी डिस्कस किया तो वहाँ पे हम समरी को डिस्कस करते हैं बट मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट पेपर या रिसर्च बेस्ड पेपर ओरिजिनल आर्टिकल टू बी रिक्वायर्ड टू डिलीवर द कंक्लूजन इन वेरी स्पेसिफिक वे और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम जैसे कि डिस्कस कर रहे हैं the plate turning process will be better surface finish as compared to normal turning. ठीक है for steel लेना and what is the value so value numerical value that is add the power in term of publication तो जितना है numerical value with justification add करते हैं here you written 1.7 times so that is the better for any publication तो ये चीज there are these are some common steps for the publication राइट अप लिखने पर कैसे राइट करेंगे क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करेंगे और जब आप इतना कर लेते हैं तो गो फॉर रेफरेंस तो हाउ टू राइट द रेफरेंसेस तो जिस जर्नल में सबमिट करना है देयर आर वेरियस रेफरेंसेस फॉर द राइटिंग द रेफरेंसेस अलग अलग जर्नल अलग अलग स्टाइल में रेफरेंसेस टू बी नीडेड बिकॉज ऑफ द कमिंग टर्म ऑफ द कॉपीराइट तो एटलीस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ references to be covered in fourth section हालांकि जनरल हाउ टू राइट ए जनरल तो यू कैन सी है जनरल को कैसे राइट करेंगे रेफरेंस बुक बुक का रेफरेंस कैसे राइट अप करेंगे चैप्टर इन एडिटेड बुक तो यू कैन सी है रेफरेंस प्रोसीडिंग आइदर नेशनल आइदर इंटरनेशनल तो हाउ टू राइट दी थ्री फोर टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस यू कैन सी है और जिस भी जनरल में सबमिट करें first check the how to write the journal. Otherwise, now in present time, most of the journal refuse to review the scholar article because they are not according to their standard format. तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि फॉर्मेट होने में तो पेपर को एक्सेप्ट होने में या रिव्यू में जाने के लिए फिर से तो वापस आ सकते हैं नाउ सबमिशन मैन्युस्क्रिप्ट तो सेम वे हम जनरल को सेलेक्ट करेंगे जनरल के साइट पे जाएंगे नाउ गो फॉर सबमिट द मैन्युस्क्रिप्ट जैसे मैन्युस्क्रिप्ट में सबमिट आइकन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे वेरियस आएंगे टाइटल को सबमिट करें ऑथर के डिटेल सबमिट करें सबमिट द कीवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनली अपलोड द मैन्युस्क्रिप्ट फिगर एंड टेबल तो सेम वे में सम ऑफ द जर्नल call a single table and figure and call separate way and finally converted into the PDF form. Or PDF form that can be checked by corresponding method
एंड फाइनली सबमिट। तो फाइनली अगर आप सबमिट कर देते हैं then general check the condition of the paper and send the review, otherwise they directly reject. So that is within more than 15 days, near about 15 to 1 month ये decide हो जाता है, but not a quick response by general check। तो इस समय जनरल मोस्टली जो 1 महीने तक, 1 से 1.5 महीने तक भी रिव्यू करने के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं रहेगी। जनरल का रिस्पांस क्या था, इफ जनरल पेपर गो फॉर द रिव्यू पर्पस, तो वहाँ पे रिव्यू में चला जाता है दैट इज बेटर फॉर जी अथर, वो अथर के लिए अच्छा होता है। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट केस स्टडी। तो इन टर्म ऑफ केस स्टडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो है डेवलपमेंट पार्ट को फोकस करेंगे। तो सपोज करें कि यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं, फैकल्टी भी हैं, और सब लोग फर्स्ट ईयर में जब आते हैं मैकेनिकल में, तो लेथ मशीन को देखते ही देखते हैं। तो इन केस ऑफ लेथ मशीन देयर इज ए सिंगल टूल अप्लाइड एट द सरफेस ऑफ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट एंड कट द मटेरियल टू गेट द डिजायर्ड शेप। But if anybody try to work at the turning operation, और वो सोचता है कि हम क्या परफॉर्म करेंगे, कुछ नया चीज इसमें करने की कोशिश करें, और वो माइंड में सेट होता है कि हम वी कैन अप्लाई ए डबल टूल टर्न, नॉट ओनली फॉर ए सिंगल टूल। हम इसमें दो टूल कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए वो क्या करेंगे कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। फॉर दैट पर्पज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू डेवलप ए न्यू वे ऑफ टर्निंग यूजिंग मल्टी टूल, means tool more than one, and to perform rough and finish turning. This concept come in concept of mind of developer, because of the turning operation that is a rough cutting process, or most of the time after turning grinding is required to get a good surface. Considering that object, the developer think how we can minimize the surface filling. So for this purpose, try to develop a other system where rough and finish cut both operation can be simultaneously performed. तो इसके लिए दैट डेवलपर कैन थिंक कि वो हम दो टूल अप्लाई करें, एक टूल से रफ कट करेंगे और दूसरे टूल से फिनिश कट करेंगे। तो इसके लिए for the purpose of developer or researcher or scholar, first go to read about turning purpose, turning process, turning application, turning material, turning tool, or for this collection of lot of data to be collected। इसकी वजह से वो जो है बहुत से डाटा कलेक्ट करते हैं, एंड सर्च फेनोमेना नॉन एज ए रिव्यू प्रोसेस। तो रिव्यू क्या है कि कलेक्शन ऑफ द डाटा। रिव्यू को जब हम सिंपल वे में डिफाइन करें, तो रिव्यू कैन बी डिफाइन एज ए कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज लाइक बुक, पेपर्स, जर्नल्स, लेक्चर्स, वीडियो, इंटरनेट, सेमिनार फॉर ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब हम एक रिव्यू से बहुत से डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट डाटा कैन बी कैटेगराइज इनटू various categories like the experimental data, theoretical data, review paper, modeling based paper, technology based paper, NM based paper, soft computing based paper, intelligent paper, तो various direction में categorize करेंगे। ठीक है, after categorize we can seriously read out each paper, बहुत carefully से उसको read out करेंगे, and write the finding, तो उसकी finding क्या है और किस उसने क्या यूज किया है, कौन से मटेरियल है, कौन से टूल है, कौन से पैरामीटर्स है, फाइंडिंग्स क्या है, और उसमें फाइनली वो जो है कुछ फ्यूचरिस्टिक ट्रिप्स क्या दिया है, तो दैट कैन बी कैटेगराइज इनटू वेरियस कैटेगरी। और उसको कैटेगराइज करके हम समराइज करेंगे। आफ्टर दी समराइज जब हम करते हैं, तो फिर फाइंडिंग आउट करते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट द फ्यूचर स्कोप, इसमें काम क्या बचा है। तो बेस्ड ऑन दिस फ्यूचर स्कोप दी स्कॉलर गो टू डू इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे एक आपको केस स्टडी की बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव था कि एक बच्चा, एक स्कॉलर जो है मल्टी कटिंग टूल यूज करना चाहता था। फॉर दिस पर्पस लिटरेचर रिव्यू किया, वेरियस लिटरेचर रिव्यू करने के बाद कंक्लूजन फ्रॉम लिटरेचर रिव्यू, उसने लिटरेचर रिव्यू को कंक्लूड किए, वेरियस कैटेगरी में उसको कैटेगराइज किए, और यहाँ पे हम समरी प्रेजेंट करते हैं। यू कैन सी है, तो टर्निंग फर्स्ट, टर्निंग की फाइंड द डेफिनेशन मींस टर्निंग कैन बी डिफाइंड एज ए मेटल कटिंग प्रोसेस वेयर सिंगल कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज्ड टू रिमूव द अनडिजायर्ड मटेरियल फ्रॉम द रोटेशन। तो सिंपल डेफिनेशन वो पता चलेगा। नाउ बेसिक कंडीशन फॉर टर्निंग, कटिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो टूल हार्डनेस ऑलवेज ग्रेटर देन वर्कपीस हार्डनेस, देयर इज रेंज 1.3 to 1.5, टूल पेनिट्रेट टुवर्ड द वर्कपीस,
Material always remove in form of chips. If material is not removed in form of chips during the turn cutting process, it means कि some other process may be considered. Material removed due to plastic deformation, shearing and tearing operation, and tool reciprocate while workpiece rotating nature. So there are relation between tool and वर्कपीस तो टूल और वर्कपीस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन नहीं है इट मीन्स कि देयर इज नो कटिंग ऑपरेशन टू बी पॉसिबल तो ये चीज होना चाहिए टूल मटेरियल नाउ टूल मटेरियल पे कंपाइल द डाटा एंड समराइज द समरी तो वी कैन फाइंड द कि almost all type of tool to be tested for the various type of material like tool steel high speed steel tool carbide tool ceramic tool CBN tool diamond tool all type of tool to be almost discussed in the various researcher for the particular object. In terms of tool and material cutting speed, plot a graph and find that the high speed tool maximum limit to be performed the cutting operation that is 33 meter, carbide tool 300 meters, ceramic tool 600 550 meters, CBN tool 800 meters, and diamond tool is more than 1 possible. Majority people work in this range. Same way, put type of diamond tool or CBN tool, ceramic tool also to be compiled and found the coated uncoated tool to be used by the various researchers. Now go to compile the workpiece material. So we can see here almost all the known material to be cut by turning operation and mild steel, high speed steel, cast iron, tool steel, die steel, hot and cold rolled steel, super alloy, titanium, inconel, aluminum, composite, copper, aluminum, plastic, wood, almost all things to be tested by researchers for turning operation. Go to know the various डायमेंशन ऑफ टर्निंग की कौन या वेरिएंट्स ऑफ टर्निंग की टर्निंग किस टाइप से डेवलप की गई है कौन कौन से डायमेंशंस हैं जो कि बची हुई जहाँ पे कि वर्क टू बी पॉसिबल फॉर द फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इन सेम वे वी कैन सी हियर द developer found that the cylindrical turning, multi-pass turning, hard turning, high-speed turning, micro turning, hybrid turning, like ultrasonic assisted turning, laser assisted turning, and magnetic field assisted turning, spark turning, chemical assisted turning, abrasive jet turning. So many hybrid turning also can be tested by the स्कॉलर नेचर ऑफ टर्निंग कि किस कंडीशन में टर्निंग हुई है तो ड्राई टर्निंग वेट टर्निंग यानी मीन्स की कूलेंट बेस्ड टर्निंग मॉइस्ट एयर बेस्ड टर्निंग सेमी कूलेंट बेस्ड टर्निंग गैस कूलेंट बेस्ड टर्निंग ऑयल बेस्ड टर्निंग वेजिटेबल ऑयल बेस्ड टर्निंग सॉलिड कूलेंट बेस्ड टर्निंग मीन्स की एनी टाइप ऑफ known material to be lubricant purpose having a lubricant property almost tested by the in various conditions. Process parameters by almost all known parameters like cutting velocity, depth of cut, feed rate, rake angle, node radius to be tested. Same way with process parameter, process responses like surface roughness, material removal rate, cutting force, tool wear, cracker, micro structure, specific energy, so many parameters, response parameter to be discussed in papers. So almost there is a very difficult for a researcher to find a new field. तो एक दिमाग में आता है कि अब हम क्या करें सब कुछ तो लोगों ने कर दिया वट वन थिंग कॉमन है कि ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या थी कि ऑल द ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म विथ ए सिंगल कटिंग टूल सिर्फ और सिर्फ एक ही टूल यूज किया गया था एक टाइम का काम करने के लिए ये चीज जो है उसको एक रिव्यूअर डेवलपर के लिए स्कॉलर के लिए वन थिंग कॉमन थी जितने भी वर्क हुए अभी तक सिंगल कटिंग टूल के लिए यूज हुए हैं एक ही टूल यूज हुआ है नो बडी कैन यूज ए मल्टी टूल तो फॉर दिस पर्पज फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी क्या निकली फाइंडिंग्स क्या थी कि हम एक मल्टी टूल बनाए मल्टी टर्निंग ऑपरेशन हाउ कैन यू कैन परफॉर्म ये उसके दिमाग में आता है कि हम जो है कैसे जो है एक मल्टी टूल को मल्टी टर्निंग ऑपरेशन को पॉसिबल कर सकते हैं दैट इज ए डिफिकल्ट टास्क
अब एक हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इफ इट इज इजियर, ये इतना आसान होता तो अभी तक इंडस्ट्री ने मल्टी पास टर्निंग को बनाया क्यों नहीं, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी। तो ये चीज़ एक दिमाग में आती है कंट्रोल। तो लेट्स ट्राई, हम देखते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं। तो हम गो फॉर फिजिकल टेस्टिंग। तो यहाँ पे हम फिजिकल टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे और इसके डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे कि इसको हम कैसे डेवलप करेंगे। तो जब हम डेवलप के बारे में बात करेंगे तो उसको देखते हैं कि क्या करते हैं। ओके, तो नाउ कम टू नेक्स्ट कि एक हमको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच मिल गया कि ऑलमोस्ट ऑल दी वर्क परफॉर्म विद सिंगल टूल। तो किसी ने मल्टी टूल का यूज नहीं किया, तो दैट इज ए गैप। यू कैन से सिंपली कि दैट इज ए रिसर्च गैप, और इस रिसर्च गैप को फुलफिल करने के लिए गो फॉर डेवलपमेंट ऑफ मल्टी टूल कटिंग। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम फार्मुलेशन। जैसे ही आप जाते हैं हायर स्टडी में, या बीटेक का प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं, या एमटेक का प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं, या फिर जो पीएचडी की स्कॉलर्स प्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं रिसर्च गैप क्या है। तो दैट इज ए रिसर्च गैप, और यही रिसर्च गैप आपको बताना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप कंपाइल करते हैं, आपके लिटरेचर रिव्यू बेटर है, लॉट ऑफ वर्क आपने कवर किया है, अलग अलग डायमेंशन में काम किया है, पेपर पढ़ा है, तो आपको रिसर्च गैप आपको कुछ भी कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अब जब रिसर्च गैप आपको फाइंड आउट हो जाता है, तो गो टू कंपाइल दी ऑब्जेक्टिव। अब हम उसमें वेरियस ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्टिव है कि टू यूज मल्टी टूल इन ए टर्निंग ऑपरेशन। एक साथ हमको साइमल्टेनियसली टू टूल को मल्टी टर्निंग में अप्लाई करना है। तो हाउ टू अप्लाई, क्या क्या चाहिए। तो सिंपल सा चीज़ है, लेथ मशीन होना चाहिए। कहीं पे भी किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में, या टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लेथ मशीन तो होती ही होती है। ठीक है, तो दैट इज ए बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपर। ठीक है, अब दूसरा क्या चाहिए। तो ऑलमोस्ट हमको क्या चाहिए कि सेकेंडरी कटिंग टूल होल्डिंग डिवाइस चाहिए। टूल होल्डिंग डिवाइस को मुझे डेवलप करना है, और वही दैट इज ए मेन फीचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डुप्लेक्स टर्निंग और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। यही एक मेन फीचर है। तो स्टेप्स हाउ टू डेवलप। Okay. So there are some common steps now, not for the standard. So check the feasibility of lathe machine. Lathe machine available है, not available है, कितनी अवेलेबिलिटी है, वर्किंग कंडीशन में है, नॉट वर्किंग कंडीशन में। कंसल्ट सीनियर एक्सपर्ट पर्सन, जो भी ऑपरेटर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वी कैन मीट देम कि दैट कैन बी पॉसिबल नॉट पॉसिबल। ड्राई रफ ड्राइंग, जो थीम है, जो आप सोच रहे हैं, उसके लिए अगर रफ ड्राइंग नहीं बनाते और वो कंसेप्ट दूसरे तक ट्रांसफर नहीं होते, दैट इज बिकम ए डिफिकल्ट टास्क। तो फर्स्टली कंपाइल द डाटा एंड मेक ए रफ ड्राइंग कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। इफ द अदर द सेकंड पर्सन अंडरस्टूड द होल थिंग, देन वन, एक से बने अच्छा दो, दो से अच्छे तीन। तो इस तरह से ग्रुप बनेगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप द प्रॉब्लम बिकम इजियर एंड इजियर। तो मल्टी जो माइंड उसमें वर्क करेंगे, एंड जब मल्टी माइंड वर्क करेंगे, टीम वर्क होगा, तो फिर जा करके डेवलपमेंट होगा। अदरवाइज सिंगल पर्सन दैट इज डिफिकल्ट टू डेवलप द टास्क। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, लिस्ट द रिक्वायरमेंट एंड कास्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, कितना कास्ट आएगी। बिकॉज आपकी अन नेचुरल कास्ट, यानी कि वेरी वेरी हाई कास्ट, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द एनी डेवलपमेंट। बिकॉज आपकी डेवलपमेंट आपका सक्सेस नहीं होता है, तो कास्ट आपकी लास्ट जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। एंड लास्ट होता है कि मार्केट सर्वे एंड स्पेसिफिकेशन अप्रोच, कि हम मार्केट में कहाँ जाएंगे और कैसे बनाएंगे। तो दीज आर सिंपल कॉमन स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डुप्लेक्स टर्निंग। और ये चीज़ों को कंसिडर करने के बाद होगा। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं कि क्या क्या करें। तो टेबल में हमने यहाँ पे दिखाया है कि क्या क्या चाहिए। तो दीज आर डाटा फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल टूल फॉर द मल्टी पॉइंट कटिंग, मीन्स की बेस प्लेट लेंथ एंड हाइट दैट इज स्टैंडर्ड हाइट, बट ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड दीज आर नॉट ए दिस पार्ट। तो वहाँ पे एक रफ लेकर के पहले उसको डेवलप किया गया था, बट दैट इज आफ्टर डेवलपमेंट दी आर डाटा गिवन हियर। तो दैट इज ए फाइनल डाटा। ओके, नाउ यू कैन सी हियर 3D व्यू। तो इस 3D व्यू में this is a bottom plate and this is a screw. This screw mounted at the cross light opposite to the primary cutting tool. तो प्राइमरी कटिंग टूल के दूसरे साइड में इसको जो है इस टूल पोस्ट को माउंट किया गया था जाने के लिए। दैट इज ए बेस पॉइंट, बॉटम प्लेट दैट इज माउंटेड एट द क्रॉस लाइट। ओके, दिस इज ए लीड स्क्रू। तो लीड स्क्रू यूज टू
control the depth of cut for the developed model. तो इस मॉडल के लिए जो लीड स्क्रू है दैट इज कंट्रोल डेप्थ ऑफ कट। तो सेपरेटली अगर जो लेफ्ट में एग्जिस्टिंग कटिंग टूल है और ये डेवलप कटिंग टूल है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी। मीन्स कि एग्जिस्टिंग कटिंग टूल वहाँ से हम डेप्थ ऑफ कट को कंट्रोल कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर कटिंग टूल के लिए, एंड दिस लीड स्क्रू यूज टू कंट्रोल द depth of cut for the developed setup. So यहाँ पे we can there are two mechanism, separate mechanism. We can say that there are separate mechanism for the particular cutting tool to control the depth of cut. But the other things like the speed, transverse speed, or the cutting speed, both are kept constant because of if there is a variation in speed, so chances of एक्सीडेंट बिटवीन कटिंग टूल। तो दोनों कटिंग टूल के बीच में क्या होगा कि एक दूसरे के साथ अगर स्पीड सेम नहीं है तो एक दूसरे के साथ वो कांटेक्ट में आएंगे और रैप्चर्स हो सकते हैं, टूट हो सकते हैं या मशीन में डैमेज हो सकता है। तो इस एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए दी ऑल अदर पैरामीटर टू बी केप्ट कांस्टेंट फॉर द बोथ। तो इन सेकंड फिगर यू कैन सी द एक्चुअल फोटोग्राफी व्यू ऑफ द सेकेंडरी टूल कटिंग डिवाइसेस, और यहाँ पे हम देखेंगे now this is complete setup on lathe machine. तो इस you can see here कि there are two cutting tools हम यहाँ पे देख भी रहे हैं। फर्स्ट here written है प्राइमरी कटिंग टूल जो ऑलरेडी इनबिल्ट है मशीन के साथ, इनबिल्ट विथ मशीन, एंड this is a secondary developed by developer, and that is a secondary cutting tool and cutting tool post. Or here we can see here almost there are two cutting tool applied at a single surface, rotating surface. और जब एक सरफेस पे एक सिंगल कटिंग टूल दो कटिंग टूल अप्लाई करते हैं तो वी कैन सी हियर कि अब इफ देयर इज ए सिंगल कटिंग टूल, एक ही तरफ से अगर फोर्स लगता है तो अगर इफ देयर इज ए फ्री हम देखते हैं और दूसरा अगर कटिंग टूल नहीं होता है तो फोर्स द होल द सिस्टम बिहेव्स लाइक ए कैंटिलीवर। और कैंटिलीवर में क्या होता है कि ये टूल जो है फोर्स जब डेप्थ ऑफ कट ड्यूरिंग द कटिंग फोर्स इंड पे फोर्स लगता है और इफ थिन मटेरियल डायमीटर कम है तो थिनर मटेरियल टू बी बेंड, पॉसिबिलिटी है तो बेंड हो जाएगा बिकॉज आपकी बिहेव्स लाइक ए कैंटिलीवर। बट अगर दूसरे साइड से भी हमने टूल को लगा दिया तो इस फोर्स को ये न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइज करेगा तो जो ऑब्जेक्ट है बेंड होने की पॉसिबिलिटी है दैट कैन बी अवॉइडेड। तो दैट इज ए बेटर benefit of the duplex turning process over the single turning process to avoid the bending phenomena for a thinner object। तो इसको हम अवॉइड करते हैं। सेम वे में वाइब्रेशन, अगर सिंगल साइड से हम फोर्स लगाते हैं, सिंगल कटिंग टूल यूज करते हैं तो ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स हाई वाइब्रेशन कैन बी पॉसिबल। बट जैसे दूसरे साइड से जो हम फोर्स लगाते हैं दैट इज कंसिडर एज ए न्यूट्रल फोर्स, तो इट मीन्स दिस न्यूट्रल फोर्स न्यूट्रलाइज द प्राइमरी फोर्स, और इसकी वजह से हमारा क्या होगा वाइब्रेशन दैट इज न्यूट्रलाइज और वाइब्रेशन हमको कम मिलेगा। तो these two things that is a more advantageous merit for the duplex turning process। और यही दो चीज ऐसी है जिसकी खूबसूरती की वजह से जो पेपर बेसिकली एक्सेप्ट होते हैं हुए हैं या होते हैं। ओके, नाउ कम टू फीजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपका सेटअप बन गया तो गो टू टेस्ट द फीजिबिलिटी। अब कोई बच्चा बीटेक का स्टूडेंट है, बीटेक में प्रोजेक्ट करता है और तो अगर यहाँ का कोई मॉडल बना देता है यानी कि टेस्ट मॉडल बना करके मशीन पे टेस्ट नहीं भी किया तो इट मीन्स कि देयर प्रोजेक्ट वर्क विल बी कंसिडर एज ए कंप्लीटेड, यहाँ तक उसका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हो जाता है। बट नाउ सिनेरियो इज चेंजेड, इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड टू पब्लिश एटलीस्ट वन पेपर। तो जब अब आपको यहाँ पे एक पेपर पब्लिश करना है तो एक पेपर पब्लिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो आपने टूल बनाया है, जो सेकेंडरी कटिंग टूल डिवाइस डेवलप करके है, दैट डेवलप डिवाइस कैन बी टेस्टेड बाय एग्जिस्टिंग सिस्टम। और ये बार बार प्रोजेक्ट में क्वेश्चन आंसर आते हैं या जो एमटेक के स्टूडेंट हैं या कि आप जो पहले से क्या बेटर है, तो टू शो द बेटर फॉर द डेवलप सिस्टम ओवर द एग्जिस्टिंग सिस्टम, तो गो फॉर टेस्ट द फीजिबिलिटी। तो जैसे हम फिजिबिलिटी टेस्ट करने जाते हैं तो मोस्टली जो कंसीडर द सेम पैरामीटर कि हम जो है किसी बोथ द कंडीशन आर सेम। और एक चीज यहाँ पे वन थिंग नाउ रिक्वायर्ड टू क्लेरिफाई है कि जब हम कोई सिस्टम नया डेवलप करते हैं या बनाते हैं
तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करते, कुछ भी उसमें चेंजेज नहीं करते हैं, नेग्लिजिबल चेंजेस करते हैं, और न ही मशीन में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस करते हैं, बिकॉज ऑफ कटिंग बिल्डिंग या होल कटिंग इस टाइप की फिनोमेना ऑपरेशन, मैकेनिकल ऑपरेशन मशीन या एग्जिस्टिंग सिस्टम में नहीं करते। ऑल द रिक्वायर्ड आर मॉडिफिकेशन टू बी डन विद इन दी डेवलपिंग सिस्टम। तो जो आप बनाते हैं हम उसी में ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, बिकॉज कि जो सिस्टम चल रहा है उसको बर्बाद करने के लिए नहीं सोचते। तो ये फिनोमेना ले करके, तो जब भी आप डेवलप करें तो ये सोचें कि जो हम बना रहे हैं उसी पे सब कुछ करना है, न कि मशीन में बहुत ज़्यादा हमको चेंज करना है, और न ही कटिंग वेल्डिंग या इस तरह की कोई ऑपरेशन मशीन में करना है जिससे कि उसके परफॉर्मेंस से आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम हो सके या स्टेट में प्रॉब्लम हो सके, तो वो चीज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हमको फिजिबिलिटी टेस्ट करना है। तो फिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हम सेम ये मटेरियल लेंगे, तो वी कैन सी है कंडीशन मटेरियल एल आई स्टील, डायमीटर 30 mm, कटिंग टूल टू नंबर्स, दो नंबर, और फर्स्ट फॉर द सिंगल कटिंग एंड टू नंबर फॉर द डबल कटिंग, डबल टूल कटिंग। कंडीशंस क्या है, तो ड्राई कटिंग करेंगे। अब कटिंग वेलोसिटी यू कैन सी हियर, देयर आर टू कंडीशंस है हमारे लिए, हम एग्जिस्टिंग सिस्टम से गो टू कंपेयर द एग्जिस्टिंग सिस्टम ड्यूरिंग दिस फॉर नॉर्मल टर्निंग, मीन्स की टर्निंग विथ सिंगल। तो यू कैन सी हियर कटिंग वेलोसिटी दैट इज 30 मीटर पर मिनट, फीड रेट 0.40 per mm per revolution, depth of cut 0.5 mm per. Okay, but go for second. Okay, second operation that is multi-point turning. So cutting speed almost 30 mm per minute. Sorry, 30 meter per minute. Feed rate that is same 0.4 mm per revolution. Depth of cut that is consider कि यहाँ पे देखें कि जब नॉर्मल कटिंग करते हैं तो डेप्थ ऑफ कट गिवन 0.5 mm. Okay, but go for the multi-point cutting and apply the double tool, both side tool. So then depth of cut for each tool given 0.25 mm. इसका मतलब ये है कि जब एक टूल को 0.25 mm का डेप्थ ऑफ कट देते हैं तो ओवरऑल डेप्थ ऑफ कट दैट इज 0.5 mm। तो हमारे 0.25 mm डेप्थ ऑफ कट देने से जो हमारा फाइनल आउटपुट ऑब्जेक्ट आएगा उसका डायमीटर चेंज नहीं होगा, यानी कि फाइनल के साथ हम कुछ भी प्ले नहीं कर रहे हैं, जो भी प्ले कर रहे हैं अपने डाटा के साथ कर रहे हैं, यानी कि हमको जो डेप्थ ऑफ कट मिलनी थी फाइनल वो दैट इज सेम एज वेल एज जो हमको नॉर्मल टर्निंग से मिलेगा। तो देयर इज नो चेंज। तो यहाँ पे हम शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि डायमेंशन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या होता है, हम रिस्पॉन्सेज में चेंज करते हैं। तो रिस्पॉन्सेज कैसे चेंज होता है उसके लिए हम गो टू रिस्पॉन्सेज। तो हियर वी कैन टेक रिस्पॉन्सेज एज ए सरफेस रफनेस। तो सरफेस रफनेस हमारे रिस्पॉन्सेज है। अब हम टर्निंग के बाद टेस्ट द रिस्पॉन्सेज यानी कि सरफेस रफनेस टेस्ट बाय द सरफेस रफनेस टेस्टर, and same way after multi-point turning test the surface roughness, but there is no change in final object। फाइनल ऑब्जेक्ट की लेंथ, डायमेंशन और डायमीटर जो है ऑल बोथ द कंडीशन आर सेम। देखें वी कैन सी है compare the surface roughness in micrometer, normal turning 3.48, okay, and in duplex turning you can see here 2.05, यानी कि near about twice times better surface finish can be achieved with duplex turning। और ऐसा क्यों हुआ, because of जब normal turning we can apply the depth, high depth of cut to get the desired diameter within the desired time period, उतने ही टाइम में। तो अब क्या था कि सरफेस फिनिश आपकी बढ़ गई, सब सारी सरफेस रफनेस दैट इज ओब्वियसली इंक्रीज करेगी। बट जैसे ही हमने डेप्थ ऑफ कट कर दिया, टाइम सेम रहा, डायमेंशन सेम रही, ओनली हमने क्या किया कि डुप्लेक्स टर्निंग की जगह पे जो है हमने सिंगल टूल की जगह पे डबल टूल अप्लाई कर दी, हमारी सरफेस फिनिश एटलीस्ट 2 टाइम्स जो है बेटर हो गई। तो इट मीन्स कि हमारा क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो गया, इट मीन्स की मशीनेबिलिटी कैपेबिलिटी जो है इम्प्रूव हो गई, और कितनी इम्प्रूव हो गई, नियर अबाउट 0.2 टाइम्स। तो दैट इज ए बेटर अचीवमेंट। ओके, एशियन इमेज में भी हम देख सकते हैं कि जो डुप्लेक्स टर्निंग से जो सरफेस मिली है ऑलमोस्ट इसमें जो स्कैटर जो है एटलीस्ट नंबर ऑफ स्कैटर्स कम दिख रहे हैं, ट्रेंच के फॉर्म में स्मूथ मटेरियल रिमूवल है, जबकि सिंगल कटिंग टूल में फिर यहाँ पे चिप्स का और चिप्स और यहाँ पे पिट्स पे है
bigger size के pits दिख रहे हैं, तो these are pits increase the surface roughness value, तो ये increase करते हैं, तो that can be simply minimum number of pits are size of pits are smaller in case of duplex turning, तो इसकी वजह से हमारी जो surface roughness that is now। अब यहाँ तक जो बच्चा काम करता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप एक मॉडल बनाते हैं, इट मीन्स कि यू विल आप कंप्लीट करते हैं प्रोजेक्ट वर्क। नाउ अगर आप इतना वर्क करते हैं कि कंपेयर कर देते हैं, एसीएम ग्राफ अपलोड नहीं करते हैं, दैट इज कास्टली बिकॉज ऑफ कास्टली, एंड तो अगर आप कंपेयर कर देते हैं सिंपली एक एक्सपेरिमेंट करके, नॉट एज ए सिंगल एक्सपेरिमेंट, single parameter and operation to be 2 or 3 and their average value to be used for analysis purpose and make a graph like this। तो अगर आप कंपेयर करते हैं तो such type of paper to be published in a conferences, national conferences या international conferences या सिंपल जर्नल, फील्ड जर्नल में आप आसानी से पब्लिश कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट गो फॉर कॉन्फ्रेंसेज, अगर आप कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करते हैं तो दैट इज बेटर। अगर आप एसीएम वगैरह लगा देते हैं तो दैट पेपर विल बी पब्लिश इन विल रिप्लेट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे आपका पेपर जो है बहुत अच्छा पब्लिश हो जाएगा और बहुत अच्छा पब्लिश वर्क माना जाएगा। और जो इतना वर्क कर लेगा ऑब्वियसली वो बच्चा जो है या वो फैकल्टी स्कॉलर जो है कभी भी इस पेपर को बर्बाद करने के लिए किसी भी फील्ड जर्नल में पब्लिश करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे अगर यहाँ तक कोई भी स्कॉलर्स वर्क करता है तो दैट इज बेटर फॉर पब्लिकेशन अप टू जो है कॉन्फ्रेंस लेवल। ओके, तो एटलीस्ट होप करें कि इसके स्टूडेंट के बच्चे हैं या जो बच्चों को प्रोजेक्ट में पेपर पब्लिश करने की बात आती है तो सच स्टूडेंट वर्क एटलीस्ट दिस स्टेज, यहाँ तक वर्क करें और अपना दिखाएं कि जो भी सिस्टम पे काम करते हैं दैट इज बेटर फॉर ओवर द एग्जिस्टिंग सिस्टम। और वो कितना है न्यूमेरिकल वैल्यू, यू कैन प्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू, यू कैन सी हियर 3.48 एंड 2.05। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं और पूछा भी जाता है कि कितना अच्छा है, तो दैट इज ए बेटर। और उसके लिए आपने कैसे देखा, तो यू कैन अप्लाई शो द साइंटिफिक एविडेंस, और यहाँ पे साइंटिफिक एविडेंस के फॉर्म में यू कैन सी द एसीएम का। ठीक है, ओके, नाउ कम टू कंक्लूजन। तो अगर सिंपल आप वर्क करते हैं तो आप सिंपली कंक्लूजन भी होगा कि मल्टी पॉइंट डिवाइस है been developed and tested, and the duplex turning or multi-point turning give a better surface finish, approximately 1.7 times better as compared to the normal turning process। ठीक है, इसके बाद अगर आप काम करते हैं, अगर बच्चा एमटेक करता है, पीएचडी करता है, तो गो टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ पैरामीटर्स और गो फॉर मॉडल भी प्रोसेस, उसके लिए आप एफएम मॉडलिंग अप्लाई कर सकते हैं, क्यूई बेस्ड मॉडलिंग कर सकते हैं, कोई मैथमेटिकल मॉडलिंग, आरएसएम मॉडलिंग, रिग्रेशन मॉडलिंग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप डिवाइडेशन टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग मटेरियल पे मटेरियल प्रोसेस को टेस्ट कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी वर्क फॉर द स्कॉलर। तो जितना भी आप काम करते जाएंगे वो काम जो है ऑलमोस्ट आपका दिखेगा। ओके, नाउ कम टू कंक्लूजन के बाद स्टूडेंट के साथ भी और सबके साथ जो हमारे फोर्थ ईयर में बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूछा जाए फ्यूचर स्कोप क्या है। तो सिंपली यहाँ पे देखें कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है मॉडल बनाया और मॉडल को सरफेस रफनेस टेस्ट किया है। बट अगर हम देखें करने के केस में तो देयर आर सो मेनी रिस्पांस पैरामीटर लाइक मटेरियल ओवररेट कितना हुआ, स्पेसिफिक एनर्जी कितनी हुई। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको हमने यहाँ पे स्टडी नहीं किया है। टूल लाइफ कितना हुआ, तो सच पैरामीटर टू बी रिक्वायर्ड टू कम इन फ्यूचरिस्टिक स्टडी। तो राइट, इसको हम वहाँ पे लिख सकते हैं in present study only surface roughness has been analyzed, but some other response parameter like specific energy, tool life, tool wear, crater wear, and material removal rate need to be studied फ्यूचर स्टडी। सेम वे में सिर्फ और सिर्फ जो हम सिर्फ इसकी बात की है, ये कई स्टील किए गए, नाउ रिसेंटली मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, सेरेमिक कंपोजिट, प्लास्टिक मटेरियल, हार्ड एंड डिफिकल्ट, हॉट एंड कोल्ड रोल, सच एंड डिफिकल्ट मटेरियल के लिए टर्निंग की जरूरत होती है। तो यू कैंडिडेट कि सुपर एलाई मटेरियल, हॉट एंड रोल मटेरियल,
and such type of hard material to be not tested in present study, but that can be included in future study. यहाँ पे देखें कि सिर्फ और सिर्फ हम एक एक्सपेरिमेंट को कंपेयर किए हैं, अदर पैरामीटर का कंपेयर नहीं किए हैं. तो यू कैन राइट हियर कि ओनली हियर लिमिटेड नंबर ऑफ रिस्पांस पैरामीटर है, प्रोसेस पैरामीटर लाइक cutting velocity and depth of cut and are considered here, but some other parameter like cutting through, nose radius, cutting angle, rake angle not considered here. So that parameter to be included for the feasibility study. क्योंकि बिकॉज आपकी डुप्लेक्स टर्निंग या मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल आप डेवलप कर रहे हैं, तो यू कैन राइट हियर कि डेवलप बाय दिस, बट सम such turning process can be hybridized with other processes to enhance the machinability like duplex laser assisted duplex turning, अल्ट्रासोनिक के साथ कंपाइल करके अल्ट्रासोनिक असिस्टेड डुप्लेक्स टर्निंग और स्पार्क एनर्जी के साथ यूटिलाइज करके इट कैन बी डेवलपिंग spark assisted duplex turning. So such type of hybrid duplex turning can be also incorporated for futuristic study. So there are so many future scope can be possible here. So obviously you can write a lot of things here. Now next thing, so that is I think last thing, लिमिटेशंस. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आप खत्म करते हैं पूछते हैं कि इसका लिमिटेशंस क्या है, तो स्टूडेंट प्रोजेक्ट के टाइम में या किसी भी चीज़ का तो कुछ पता नहीं लिमिटेशंस क्या है, तो वहाँ पे यू कैन सिंपली जैसे कि आप डुप्लेक्स टर्निंग के बात करेंगे तो देखेंगे कि जब हम सिंगल टूल अप्लाई करते हैं तो एक साइड से सेटिंग करते हैं, बट अब जब डबल टूल अप्लाई करेंगे तो सेटिंग दोनों साइड से करना पड़ेगा. इट मीन्स कि यू कैन से दैट कि इनिशियल सेटिंग टाइम इज हाई, दैट इज ए लॉस बिकॉज ऑफ कि 2 बार आपको सेटिंग करना पड़ेगा. ठीक है. कंपैरेटिव नॉर्मल टर्निंग क्या होता है कि कोई भी ऑपरेटर कर सकता है, बट अब डुप्लेक्स टर्निंग करना है तो कंपैरेटिवली स्किल ऑपरेटर इसके लिए अप्लाई होगा. ठीक. और तीसरी चीज क्या है कि इसके लिए एडिशनल सेटअप की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि इनिशियल कास्ट टू बी हाई, वो भी अच्छा होगा जाकर होगा. तो दीज आर सम लिमिटेशंस फॉर द डुप्लेक्स टर्निंग प्रोसेस. तो ये लिमिटेशन आपसे पूछा भी गया था, दैट इज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट आइडल थीसिस, तो ये चीज़ें वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है. और अब तो पेपर के साथ साथ जैसे हम पेपर में सबमिट करते हैं तो कंक्लूजन पार्ट में ही मोस्ट ऑफ द जनरल कॉल फॉर द लिमिटेशन ऑफ या फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी फॉर द प्रेजेंट वर्क, तो वो चीज़ वो मांगते हैं कि आप 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस में टू बी डिफाइन दी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच. तो यहाँ पे वो चीज़ है, और ये जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है वो लिमिटेशन से निकल करके आता है. अब हम यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि इनिशियल सेटअप टाइम इज हायर, तो इनिशियल सेटअप टाइम अगर हायर है ज़्यादा है तो हाउ यू कैन मिनिमाइज, तो दैट इज ए नेक्स्ट फेज ऑफ रिसर्च. तो वहाँ पे कैसे रिसर्च करेंगे, गो फॉर ऑटोमेशन. एक हम वहाँ पे किसी तरह का एक मैकेनिकल या सेंसर बेस्ड डिवाइस को डेवलप करें कि एक टूल को ही ऑपरेट करते हैं, यानी कि प्राइमरी मशीन में एग्जिस्टिंग टूल को ऑपरेट करें, आइदर भी डेवलप टूल को ऑपरेट करें, एंड बोथ दी टूल कैन बी गेट equal depth of cut or unequal depth of cut based on the nature of machine. तो उसके बेस पे हम जो कुछ ऑटोमेटेड टाइप का डिवाइस डेवलप करें और ये दोनों को एक साथ फिट करें कि फिट अ सिंगल फीड यूटिलाइज फॉर गिविंग ये डेप्थ ऑफ कट एट ए टाइम फॉर ए सिंगल ऑपरेशन. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हम लीड स्क्रू दोनों के लिए अलग अलग यूज कर रहे हैं, तो हम दोनों के लिए एक सिंगल लीड स्क्रू यूज करेंगे. अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा कि सिंगल लीड स्क्रू यूज करेंगे तो दोनों के एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो वहाँ पे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से हमको वहाँ पे फीड देना है, तो यू कैन कट दी रिवर्स थ्रेड. तो वहाँ पे हमको लीड स्क्रू में एक लेफ्ट हैंड और दूसरे साइड में हाफ पोर्शन में राइट हैंड साइड का अगर डेवलप करते हैं और इस तरह का कोई बच्चा इस पे काम करता है तो ऑब्वियसली इस बच्चे का जो है एक बेटर प्रोजेक्ट होगा. तो एक मतलब डुप्लेक्स टर्निंग में भी एक आपको जो है टाइम को मिनिमाइज करने के लिए काम आसानी से यू कैन फाइंड आउट. तो यहाँ से आपको दूसरा काम आप करना, मतलब जो बच्चे लोग या जो भी रिसर्च स्कॉलर है वो इसको मिनिमाइज कर सकते. दूसरा क्या है कि हम डुप्लेक्स टर्निंग दैट इज ए मैनुअल ऑपरेटेड मशीनिंग सिस्टम. तो सच मशीनिंग सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीएनसी ऑपरेटेड सिस्टम. और अगर हम सीएनसी की तरफ इस पर काम करते हैं तो ऑब्वियसली अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी इंस्टीट्यूट और कोई भी अगर सीएनसी के
इसको डेवलप करके CNC में कन्वर्ट करके और गो फॉर अप्लाई फॉर पेटेंट। तो वहाँ पर अगर थोड़ा सा काम करके कोई अप्लाई करना चाहता है तो पेटेंट कैन बी पॉसिबल हियर। बट अगर इतने डाटा आप पब्लिश कर देंगे तो पेटेंट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपकी आपने सेटअप पब्लिश कर दिया, आपने पेपर पब्लिश कर दिया, एक फिगर बहुत जगह पब्लिश कर हो चुके हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस। तो उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा, अलग से CNC का अप्रोच दिखाना पड़ेगा, अलग से पैनल बनाइए, देन गो फॉर अप्लाई फॉर पेटेंट। तो फिर वहाँ पे वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी या पेटेंट करना चाहें। So that is single work can be converted in term of paper publication, MTech, PhD as well as patent। तो आप देखें कि कैसे जो है कन्वर्जन पॉसिबल है। Now go to see the work for the develop setup जो BBD में डेवलप हुआ था और एक स्टूडेंट के साथ जो है बीटेक का स्टूडेंट एमटेक का स्टूडेंट डेवलप किया था। तो यू कैन सी है कि बीटेक का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, एमटेक की थीसिस के बाद हुई और एक PhD की थीसिस सबमिट हुई। ओके, और जो पब्लिकेशन के टर्म में देखेंगे तो 3 ACI पेपर ऑलमोस्ट पब्लिश हो चुके हैं। पहला पेपर देखें IoT साइंस में पब्लिश हुआ है जिसका 1.929 इम्पैक्ट फैक्टर है। दूसरा जो है मेजरमेंट एल्सवियर में पब्लिश हुआ है जिसका 3.36 इम्पैक्ट फैक्टर है। तीसरा जो है एडवांसिंग मैन्युफैक्चरिंग स्प्रिंगर में पब्लिश हुआ है जिसका 2.56 इम्पैक्ट फैक्टर है। रिमेनिंग 2 पेपर अंडर रिव्यू और इस पे 2 पेपर भी अभी इसमें है। ओके, सेम में स्कोपस में देखें तो इंडर साइंस में एक पेपर पब्लिश हुआ है 2020 और ये पेपर भी आपका इंडर साइंस में पब्लिश हुआ है 2020 में। ये पेपर जनरल ये स्प्रिंगर में दैट इज ESCI पेपर और ये 2019 में पब्लिश हुआ है। और मटेरियल परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टराइजेशन ASTM पब्लिशर का है और दैट इज ESCI पेपर। तो 3 and 4 दीज आर ESCI पेपर। तो these are 4 paper in category of scopus in ESCI paper already published in the duplex turning process. Okay. Now conferences, so you can see here 3 conferences almost published here, 3 and 4 and 5. So 5 conferences already published and a single developed setup that is referred as a duplex turning setup or multi-point cutting tool setup. Okay. So फाइनली थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अगर यहाँ पे आपको किसी को कुछ पूछना है, कहना है, सजेशन देना है तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली एनी क्वेरी प्लीज और एनी सजेशन प्लीज आस्क। Thank you so much, HOD sir, for such a momentous speech and very vital and information. The various types of research papers, its classification generals like Scopus, SCI, and SCIE publishers, etc., etc. Now, if anybody has any type of queries regarding the session, please go ahead. You can either write it in the chat box or you can even unmute yourself and ask. Also, the feedback link has been shared in the chat box. Please ensure that you have filled the form. Does anybody have any type of question regarding the session? You can unmute yourself and ask. So I guess not. Does anybody have? I guess not, since the explanation was so detailed and grave. I don't think anybody would be having any misconception regarding this. So now I would like to conclude this event. But before that, any question? Okay, nothing. So before concluding, I would like to tell that the feedback link is being shared in the chat box. Please ensure that you have filled it. Hello. Yes. Hello. Yes, any question? Yeah. Okay. First of all, I would like to thanks Professor Dr. R.N. Yadav for this wonderful talk. I have a question that what is the difference between publishing a patent and an article?
Thank you, sir. Repeat the question, please. Ansar, please repeat the question. Please repeat the question, please. Hello. My question is, what is the difference between publishing and article and a patent? Okay. Thank you, sir. And that is a good question because the publication is other thing and patent is other thing. In terms of patent की हम बाद में बात करेंगे तो intellectual property rights तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पेटेंट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं होल थिंग होल द ऑब्जेक्ट दैट यू अप्लाई फॉर द पेटेंट तो पेटेंट के लिए जब अप्लाई करते हैं तो यू कैन गेट आफ्टर consider as a new thing, new process or new technology or new items or new product. So something new, वो कुछ भी नया होता है और you try to go for commercialize your object. जो भी ऑब्जेक्ट को उसको कमर्शियलाइज करना चाहते हैं और फॉर दिस पर्पज उसके लिए पेटेंट के लिए पेटेंट फॉर्म पे अप्लाई करते हैं और यू कैन जब आप अप्लाई करते हैं दैट इज ए लॉन्ग प्रोसेस एंड एटलीस्ट देयर इज ए ईयर 1 year 2 year और देयर इज सो मेनी लॉट ऑफ टाइम पेटेंट के लिए आप जब फाइल करते हैं पेटेंट फाइलिंग के लिए आल्सो पेटेंट फीस एंड देयर इज ए स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर द पेटेंट जिस तरह से हम पेपर पब्लिकेशन के लिए बात कर रहे हैं कि टाइटल अपडेट कीवर्ड्स और लिटरेचर रिव्यू रिजल्ट एंड डिस्कशन कैलकुलेशन डिफरेंसेस ये अगर हम पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये चीजें उसके स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करेगा एंड जैसे ही पेटेंट फाइल होती है पेटेंट के बाद देयर आर लॉट ऑफ क्वेरी बहुत सी क्वेरी आती है बेस्ड ऑन दिस देयर आर टू टाइप ऑफ पेटेंट मोस्टली नेशनल एंड इंटरनेशनल तो नेशनल के लिए अप्लाई करते हैं इंटरनेशनल के लिए अप्लाई करते हैं और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं आप क्वेरी को फिल करते हैं तो आफ्टर दैट पेटेंट इज आल्सो ग्रांटेड क्रेडिटेड और उसके बाद यू कैन sell your the टेक्निक टेक्नोलॉजी और जो भी आपका ऑब्जेक्ट हो उसको किसी कंपनी के थ्रू या किसी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कंपनी को आप दे सकते हैं या टेक्नोलॉजी को दे सकते हैं और उसको कमर्शियलाइज कर सकते हैं बट इन केस ऑफ पेपर राइटिंग ओनली दैट इज यूज फॉर द टू मीट द ये फॉर द डिग्री पर्पज टू पार्शियल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डिग्री लाइक बीटेक एमटेक और पीएचडी तो इसकी हमको फुलफिल करने के लिए हम जो पेपर को पब्लिश करते हैं कि अगर आप एमटेक करते हैं तो आपको एक पेपर की रिक्वायरमेंट है पीएचडी करते हैं तो 2 या 3 पेपर की रिक्वायरमेंट है और ओनली इन कैरियर इनहेंसमेंट कि हमने इतने पब्लिकेशन कर लिए हैं तो उसका क्रेडिट आपको और फर्दर अगर आप बाद में तो उसको आपको क्रेडिट होगा बट सच टाइप ऑफ पब्लिकेशन आप कंसिडर है कमर्शियल पब्लिकेशन ये आपको कमर्शियल आपको उसको फायदा नहीं मिलता है और इसका फायदा बेनिफिट जो है पब्लिशर को मिलता है तो ये चीजें हैं यहाँ पे कि पेटेंट और पेपर पब्लिकेशन में कि पेटेंट अगर आप करते हैं तो आपको कमर्शियल बेनिफिट्स मिलेंगे और अगर पेपर पब्लिश करते हैं तो उसको हमको ये एकेडमिक बेनिफिट्स मिलेंगे ओके थैंक यू सर Many thanks, Thank you, Professor. sir. Many thanks, Professor Yadav. Thanks for clarifying the issue. Thank you. Thank you, Shakti sir, and thank you, Chodi sir. Any other question? Does anybody have any other question? Okay, I guess not. So now may I conclude it? But before that, everyone should fill the feedback form in the chat box. Excuse me, sir. Am I audible, sir? Yes, sir. sir, you're audible. yes sir Oh, thank you. So actually, I have a query to know that when I am searching for the different research papers, I have found that the index, the citation and the index. So how you can know that the citation or the index is corrected or not, sir? Because each and every paper have its own index. ओके सर थैंक यू सर फॉर दिस क्वेश्चन तो यहाँ पे आजमल सर हम क्लेरिफाई करना चाहेंगे कि इंडेक्सिंग और साइटेशन
तो साइटेशन पेपर जनरल का भी साइटेशन की जब हम बात करते हैं तो एक पेपर जैसे आपने एक साइटेशन को इस टर्म में हम देखें कि साइटेशन कैन बी डिफाइन इन टर्म ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर कि एक पेपर जो है पिछले 3 सालों में कितना पेपर पब्लिश किया और उसके वॉल्यूम कितने वॉल्यूम पब्लिश किए और कितनी जगह पे एक पेपर कितनी जगह पे साइट हुआ, चाहे गूगल स्कॉलर का हो गया, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे हो गया, कितने लोगों ने उसको साइट किया। तो जितने लोगों ने साइट करते हैं तो उसके बेस पे उसको हम साइटेशन बोलते हैं। ये हम अपना खुद का भी साइटेशन आप गूगल स्कॉलर में देख सकते हैं कि आपका पेपर कौन कौन लोगों ने कहाँ कहाँ पे साइट किया है, तो कितने लोगों ने आपके पेपर का रेफरेंस अपने पेपर में दिया है, दैट इज कम इन कैटेगरी ऑफ साइटेशन। और साइटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मोस्टली हम इम्पैक्ट फैक्टर को यूज करते हैं, और जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है वो जनरल के साइटेशन को इंडिकेट करता है कि अगर किसी जनरल का इम्पैक्ट फैक्टर 2.5.8 है, इसका मतलब है कि उस जनरल में पब्लिश हुए हर पेपर जो है एटलीस्ट 2.5 टाइम्स जो है कहीं कहीं साइट हुए हैं। भले कोई पेपर साइट ना हुआ बट एवरेज वो दिखाएगा कि ये एवरेज साइटेशन एक पेपर में पर्टिकुलर 2.5 टाइम्स वर्ड वाइज कहीं कहीं साइट हुआ, ठीक है। सेम वे में आप अपना भी चाहें तो पर्टिकुलर फैकल्टी भी अपने एक पेपर का गूगल स्कॉलर पे साइटेशन चेक कर सकती है। अच्छा, इंडेक्सिंग की जब बात करते हैं तो इंडेक्सिंग जो पेपर की जनरल की कैटेगरी को इंडिकेट करता है कि किस कैटेगरी का पेपर है, और जो इंडेक्सिंग है वो अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि साइंस साइटेशन इंडेक्स की जो हम बात कर रहे हैं, या स्कोपस की बात कर रहे हैं, या फिर पीयर रिव्यू की बात कर रहे हैं। तो ये इंडेक्सिंग एक पैरामीटर्स है, और यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर्स कंसिडर करते हैं, देखिए पब्लिकेशन पैरामीटर की पीरियाडिक पब्लिकेशन हो रहे हैं कि नहीं, फॉर्मेटिंग का पैरामीटर, फिगर्स का पैरामीटर, टेक्निक्स का पैरामीटर, अथर के पैरामीटर, तो सो मेनी थिंग्स को कंसिडर करते हैं, और उसके बाद जो है इंडेक्सिंग पैरामीटर को स्टार्टिंग की कैटेगरी में जो इसको हम वो करते हैं। तो जैसे कि हमने Thank बात you. किया था, तो ओवरऑल आई थिंक बोथ टू बी क्लियरिफाई है। थैंक यू फॉर दिस। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, Ajman sir, for the question. Any other question? Any other question? Okay, thank you for the meaningful and factful discussion. Now I would like to conclude this event. Thank you so much, HOD sir, for such an informative and praiseworthy discussion. And last but not the least, a very humble thank you to all the faculty members and the students for being a part of this event. Your presence makes a tremendous value to us. Now, since the meeting has been over, you all can leave the room. But before that, please make sure that you have fulfilled the feedback link in the chat box. Thank you so much. Thank you all. Thank you so much, sir. After filling the feedback form, you all can exit. Please make sure to fill the feedback link before leaving. Thank you, Arjita. Thank you so much, sir.